गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन मार्क सोल्यूशन। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ में डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स के वन मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वन मार्क क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, assertion region questions, choose the correct alternative questions. These are the different types of questions which is asked by the CBSE as well as in the your home examination. So regularly we are discussing about the different chapters, different subjects through this platform. Today we are going to discuss about the chapter 11 of chemistry for class 12th, and the chapter name is alcohols, phenols and ethers. So today we have with us as a subject expert Madam श्रद्धा शुक्ला। श्रद्धा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, आपका हम स्वागत करते हैं। Shraddha ma'am is working as a PGT chemistry in Kendriya Vidyalay RRC Fatehgarh. She has worked also as a TGT science from since 2014 and then joined as a PGT chemistry. So निश्चित रूप से एज अ PGT chemistry मैडम काम कर रही हैं और आज हमारे साथ क्लास 12 के लिए चैप्टर 11 दैट इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो वन मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और वन मार्क के क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, कैसे उन क्वेश्चंस को पहचाना जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उनके बारे में मैडम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, जो टीचर्स नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली जो वीडियोज, जो पिछले चैप्टर्स के वीडियोज हैं, दे कैन रेफर फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। वो प्लेलिस्ट से जा करके उसको देख सकते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर मैडम श्रद्धा शुक्ला। मैडम प्लीज। Okay, thank you so much, Dr. Asad Ahmed. I'm very thankful to this platform, One Mark Solution, for giving us opportunity to interact with students and to discuss various aspects of different chapters in different subjects. Like my subject is chemistry, so today we will be discussing about alcohols, phenols, and ethers. That is chapter number 11 of class 12 and a very important chapter of organic portion, and we will be discussing various multiple choice questions, true false, fill in the blanks, etc. I hope you will enjoy this session, and this will be a revision session for you people because most of the vidyalayas syllabus must have ended by this date. And now I just want to begin this session. Stay connected till the last, and if you want to ask anything, you can send your queries too. So here I go. The chapter is alcohols, phenols, and ether. One mark questions. Sir has already introduced me. I am Shraddha Shukla, PGT Chemistry, KVRRC Fatehgarh. This one mark solution platform is giving us this golden opportunity to discuss with you all various questions, and to get more videos of all the subjects, you should like, share, and subscribe One Mark Solution. First, we start with the multiple choice question category. The very first question is, mention the chief chemical compound present in the ordinary spirit used for polishing wood. I hope by seeing the options only, you can guess the right answer. The options are option A, acetone, option B, propanol, option C, ethanol, and option D, none of above. So, in ordinary spirit, the chief chemical compound that is present is none other than ethanol. That is, in common name, you can say ethyl alcohol. Since we are studying alcohol, phenols, and ether, so we must know their common uses as well, and where in daily life they are used. So the correct answer is option C, that is ethanol. This is a chemical compound in front of you. This is an alcohol. You can judge it by the presence of OH group. Following alcohol can be classified as A, primary alcohol, B, secondary alcohol, C, tertiary alcohol, D, dihydric alcohol. Students,
alcohols are basically classified in primary, secondary, and tertiary alcohol. They can also be classified into monohydric, dihydric, polyhydric, etc. on the basis of number of OH group present. Okay, but here, as you can see in this particular structure, this is none other than a primary alcohol. Why? Because the OH group is attached to CH2. If it would have been attached to C, that is the second carbon to which two other methyl groups are attached, then it would have been a tertiary alcohol. So, by seeing this structure, many students may get confused and they could mark tertiary alcohol, but you have to be very particular and you have to see the structure very properly. And this is a primary alcohol. This cannot be a dihydric alcohol, that is option number D. Why? Because you have only one OH group present in this particular compound. Coming on to the next question. The compound obtained by the reaction of ethene with diborane followed by hydrolysis with alkaline H2O2 is option number A, ethanol, option number B, propanol, option number C, acetone, and option number D, triethyl bromide. ये जो रिएक्शन आपके सामने है, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है. इथीन या किसी भी एल्कीन का अगर डाइबोरेन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो दैट इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमें एक अल्काइल ब्रोमाइड मिलते हैं, ट्राई अल्काइल ब्रोमाइड्स मिलते हैं, और उसके बाद जब हम उन्हें हाइड्रोलाइज कराते हैं अल्कलाइन H2O2 के साथ तो हमें उसके बाद अल्कोहल्स मिलते हैं. तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें अल्कोहल्स कौन कौन से हैं? इथेनॉल और प्रोपेनॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. बट यहाँ पर हमने एल्कीन कौन सी यूज की है? इथीन यूज की है. तो इथीन आपका इथेनॉल ही प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट इट विल गिव इथेनॉल ओनली. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ए, दैट इज इथेनॉल. Okay, now let's move to the next question. The product formed after acid catalyzed hydration of propene is A, propanol, B, propane 2-ol, C, butanol, D, none of the above. Okay, so in acid catalyzed hydration, that is, you add water molecule in the presence of an acid to an alkene. What happens in this reaction? There is if you see the mechanism of this reaction, then you will find out that there is a formation of carbocation too. And if you see the options, actually option number C वो तो पहले ही ओवररूल हो गया है. ब्यूटेनॉल, प्रोपीन से ब्यूटेनॉल नहीं बन सकता है. तो हमारे पास दो क्लोज ऑप्शन है. बच्चों एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे दो क्लोज ऑप्शन हमारे पास हैं ए और बी, प्रोपेनॉल है और प्रोपेन 2-ol है, तो आपको उसकी मैकेनिज्म देखनी होगी. अगर आप मैकेनिज्म याद करेंगे तो इसमें कार्बोकटायन बनता है, और अगर हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकटायन और फिर प्राइमरी कार्बोकटायन. तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर प्रोपेनॉल बनाएंगे तो प्राइमरी कार्बोकटायन इसका मतलब है ना. और अगर प्रोपेन 2-ol है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बोकटायन यूज हो रहा है दैट इज सेकेंडरी कार्बोकटायन. ओके, तो ऑब्वियसली कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर आप सही आंसर जज कर सकते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज option number B, that is propane 2-ol. Coming on to the next question. Next question says that phenol on reduction with H2 in the presence of nickel catalyst gives. Okay, so this is a reduction reaction of phenol with hydrogen. And what is the catalyst that is being used here is nickel. Okay, so the options are option A, benzene, option B, toluene, option C, cyclohexane,
And option D, cyclohexanol. For this particular question, you have to see the reactant. The reactant is phenol. Okay. And when phenol gets reduced, then it leads to the formation of option number D, that is cyclohexanol. Okay, the cyclic, the double bonds that are present in the phenolic ring that get reduced, and we have cyclohexanol as the main product. Now coming on to the next question. Next question states that when phenol is treated with excess bromine water, it gives. This is a very common question that comes in the CBSE examination. I think last year we saw the questions in the pre-boards also and on the main paper also. This question is very famous question. When phenol is treated with excess of bromine water, that is bromine water and H2O, we have the option M-bromophenol, B, ortho and para-bromophenol. M-bromophenol means meta-bromophenol. And option B is ortho and para-bromophenol. Option C is 2,4-dibromophenol. And here comes the option D, that is 2,4,6 tribromophenol. This question is also a tricky one, okay, because here you know that phenol is orthopara directing and we are doing bromination, okay, but here monobromo products will not be obtained. Monobromophenol will not be obtained because we are using bromine water in excess, okay. So the bromine will get attached to the ortho and para position. All available ortho and para position, it will get to attach to second position, fourth position, and the sixth position, leading to the formation of 2,4,6 tribromophenol. And here is the answer. It is D, 2,4,6 tribromophenol. The next question is, phenol is less acidic than. Students, acidity of phenol is a very important concept and आपको एग्जाम में एसिडिटी ऑफ फिनॉल कई बार मिलेगा, कई सारे और केमिकल कंपाउंड्स के साथ मिलेगा, आपको कंपेयर करने को मिलेगा। हो सकता है कि फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर वो दे दें, CH3 लगा के दे दें, है ना, और हो सकता है फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन ये रीजिंग ग्रुप लगा के दे दें तो CH3 लगा के दे दें, और विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे उन्होंने हैलोजेंस लगा दिए, उन्होंने क्या कहते हैं, एग्जाम में आपको मिल सकता है नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड मिल सकता है, नाइट्रोफिनॉल्स मिल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको फिनॉल्स की एसिडिटी, और अगर उनपे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रहे हैं तो उसका फिनॉल्स की एसिडिटी पर क्या असर पड़ेगा, ये चीज बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। और जितने भी मैंने इस लेक्चर में या सेशन में जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सब आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंसीडर करते हुए ही लिए हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, बेस यही रहेगा, और उसका जो लेवल है वो उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ए पैरानाइट्रोफिनॉल, बी इथेनॉल, सी प्रोपेनॉल, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोगों ने एसिडिटी ऑफ फिनॉल और अल्कोहल्स को पढ़ा होगा तो आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि फिनॉल्स आपका अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस ये एसिडिक होता है ना। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल का तो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अल्कोहल, ये जो दोनों अल्कोहल्स हैं, और ये दोनों अल्कोहल्स आपके ऑप्शन नंबर बी और सी ये तो पहले ही ओवर रूल हो गए। अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की ओर देखें, है ना, तो पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिंग से, जो बेंजीन रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ना। तो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसका नेचर होगा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उतना ही इजीली जो फिनॉल का H+ है वो लूज होगा, और जितना जल्दी लूज होगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि उसी से ही फिनॉल लेस एसिडिक है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल। The next question in this multiple choice question category is the alcohol which does not react with Lucas reagent is। अब हमें एक ऐसे अल्कोहल की बात करनी है यहाँ पर जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना करे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बी इज एन ब्यूटेनॉल, सी इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, डी इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली ल्यूकास रिएजेंट यूज होता है। और आपने सबने पढ़ रखा होगा कि ल्यूकास रिएजेंट मतलब हम ZnCl2 और जिंक क्लोराइड और HCl का सोल्यूशन लेते हैं, और जब हम अल्कोहल से इसको रिएक्ट कराते हैं तो वो क्लोराइड्स बना लेते हैं। और ये क्लोराइड्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स तो आपके सॉल्युबल होते हैं, पर ये जो आपके क्लोराइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये टर्बिडिटी कॉज करते हैं, है ना। तो जो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं वो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स तो ल्यूकास टेस्ट देते ही नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल्स ल्यूकास टेस्ट देते हैं, द टर्बिडिटी अपीयर्स बट इट अपीयर्स आफ्टर 5 minutes, एंड tertiary alcohols are most reactive towards the Lucas reagent. Okay, the turbidity appears immediately. So in this case हम कह सकते हैं ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी एंड ब्यूटेनॉल, okay, that is a primary alcohol. So yes, the correct answer is N-butanol, ये Lucas reagent के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। I hope you all are following all the questions. Now the next question is reaction of formaldehyde with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis results in formation of। अब यहाँ पर सबसे फेमस रिएजेंट आ गया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टेस्ट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, और इसके बाद एल्डिहाइड्स कीटोन वाला जो चैप्टर था उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, इनफैक्ट हेलो एल्केन्स में भी था, है ना। तो इसमें क्या है कि अभी ये एल्डिहाइड कीटोन में अगर ये रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ से आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, इट इज एन एल्डिहाइड। इसके साथ जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का या हमने उसका ले लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया है, जहां पर एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, है ना, और मेटल है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। तो मिथाइल आपका नेगेटिव चार्ज होगा और जो मेटल है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस मिथाइल will attack on the formaldehyde. Okay, formaldehyde आपका एल्डिहाइड है और इस पे कार्बोनिल कार्बन है, उस पर आकर ये अटैक करेगा और मिथाइल आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक अडक्ट बना लेगा। उसके बाद जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं इसको तो वो अल्कोहल्स देता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए मिथेनॉल, बी इथेनॉल, C ethanol, and D none of the above. So by seeing the options, it is very obvious that it can't be A, because you can see it is methanol. In last Al is attached. Al stands for aldehyde. तो एल्डिहाइड में मिथाइल मैग्नीशियम जुड़ के फिर से एल्डिहाइड नहीं दे सकता। उसी तरीके से अगर आप इथेनॉल को देखें, इट इज अगेन एन एल्डिहाइड। सी ऑप्शन इथेनॉल, ओके, इथेनॉल यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसमें अटैच हुआ, इथेनॉल आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ रिएजेंट्स और कुछ मेन रिएक्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से हर चैप्टर में कर लेनी है। जैसे आपके कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, इस चैप्टर में भी कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, जैसे विलियमसन सिंथेसिस है और आपकी कोलबेज रिएक्शन है ना। और इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो इनको आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए ताकि कहीं से भी इनसे कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके।
Now, next question in this category is aniline, when reacted with nitrous acid, results in the formation of A. Benzene, diazonium chloride, B. Phenol, C. methyl benzene and D. both A and C. तो यहाँ पर आप देखिए एनिलीन है ना, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अमीन में भी आपने ये पढ़ा होगा। जब हम उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये जानने की है कि नाइट्रस एसिड HNO2 आपको ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है तुरंत। कैसे? NaNO2 और HCl के रिएक्शन से। ओके, सोडियम नाइट्राइड के और HCl के रिएक्शन से नाइट्रस एसिड हमें मिलता है। और जब हम एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें डायजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। सो हियर the correct option is option number A, benzene diazonium chloride, that is a diazonium salt. Another question in this category, which of the following has highest boiling point? Now this question falls in the category of questions where the questions can be taken from physical properties of alcohols, phenols and ethers. So if you are just focusing on reactions and not paying attention towards the physical properties, then you have to be very particular, because physical properties may also be asked in the question form also. Like here you have the options as ethanol, B methoxymethane, C propane and D is methanol. तो यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को अगर ध्यान में दें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास क्या है? इथेनॉल है जो कि एक अल्कोहल है। फिर उसके बाद दूसरा है मिथॉक्सीमीथेन, इट इज एन ईथर। ओके, फिर आपके पास है प्रोपेन जो एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। और उसके बाद है डी मिथेनॉल, दैट इज अगेन एन अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको एक ये जानना पड़ेगा कि आपके अल्कोहल्स, ईथर्स और ये हाइड्रोकार्बन्स, इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? भाई इथेनॉल का होता है। या फिर आप कह सकते हो कि अल्कोहल्स का होता है, कोई भी अल्कोहल होगा आपका, उसका अगर आप ईथर के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। रीजन भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ये जितने भी अल्कोहल्स होते हैं इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। अब ईथर्स में ऐसा नहीं हो पाता है, और हालांकि वहां पे ऑक्सीजन है फिर भी उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोपेन, यहाँ पर ये तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में तो आपका ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब फिर ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल है, वो भी अल्कोहल है, और ऑप्शन नंबर डी इज मिथेनॉल, दैट इज ऑल्सो एन अल्कोहल। So here you have to see the number of carbon atoms. As the number of carbon atom increases, the boiling point increases. So here we have the correct option, option number A, ethanol. Now the next question, acetylation of salicylic acid produces A, salicylaldehyde, B, acetophenone, C, acetyl salicylic acid, and D, none of the above. So this question is about acetylation reaction. Acetylation reaction is a reaction in which acetyl group is added. Okay, so salicylic acid we have at one carbon we have OH, and the other carbon we have COOH group. So when we do the acetylation reaction, that is when we react it with acetic anhydride in the presence of H plus, then we get what? Option number C, that is acetyl salicylic acid. Okay, so acetyl group is introduced in the salicylic acid. Okay, so here we have the correct option, that is option number C, that is acetyl salicylic acid. Next question is, the relative ease of dehydration of alcohols follows the order: primary, secondary, tertiary, tertiary, secondary, primary, D, secondary, tertiary, primary, and D again primary, tertiary and then secondary. तो यहाँ पर जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात की जाएगी तो फिर हम मैकेनिज्म पे जाएंगे, ऐसे बिना मैकेनिज्म के हम उसको नहीं जान पाएंगे। मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें भी आपको देखना है
कि कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन ऑब्वियसली इट विल बी मोर स्टेबल। सो सबसे इजिली जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेंगे वो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। The next question is which of the following alcohols will not undergo oxidation reaction? अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कौन कौन से इनमें से जो अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए इज इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इज आइसोप्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी इज 2-methyl propane 2-ol, option number D is none of the above. So here you have to just see the structure, visualize the structure of the alcohol that is being given in the options. You know that the primary alcohols, when these are oxidized in the presence of oxidizing agent, these lead to the formation of aldehydes, and secondary alcohols lead to the formation of ketones. Okay, if we use mild oxidizing agent, if you are using strong oxidizing agent, then you can directly obtain carboxylic acids from alcohols. But tertiary alcohols, these do not undergo oxidation reaction. So option number C, that is 2-methyl propane 2-ol, is a tertiary alcohol and it will not undergo oxidation reaction for sure. Yes, my favorite question. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। The yellow colored compound that is obtained by the nitration of phenol with concentrated nitric acid is, जब concentrated nitric acid के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने नाइट्रिक एसिड कौन सा यूज किया है, concentrated नाइट्रिक एसिड यूज किया है ना। तो आपको ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कि जो आपका एसिड वगैरह यूज है वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, रिएक्शन की कंडीशंस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऑर्गेनिक में सारा खेल रिएक्शन कंडीशंस का भी है, रिएजेंट्स के साथ साथ, है ना। जैसे अभी आप यहाँ आपको दिखाएंगे आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अगर हम रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दें तो हमें प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। ओके, तो एग्जाम में जब कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे कहते हैं कि मैम हमने क्वेश्चन तो सही किया था, उसका ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जरा सा अगर आप रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं सैलिसिलिक एसिड, बी पिक्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो येलो कलर कंपाउंड बनता है वो है पिक्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड हमने लिया है, इसको अगर हम पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम भी अगर दें तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसे कहा जाता है ना। येलो कलर्ड कंपाउंड होता है। आगे हायर क्लासेस में अगर आप लेंगे केमिस्ट्री तो आप जानेंगे कि ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इस वजह से इसका जो कलर है येलो कलर का है। तो ऑप्शन इज बी, दैट इज पिक्रिक एसिड। Next question is the intermediate formed in Riemann-Tiemann reaction is. Riemann-Tiemann reaction is another important reaction for your exam point of view, like Kolbe's reaction, Williamson synthesis. Riemann-Tiemann is also very important. Okay, so first option is substituted benzyl chloride, B salicylaldehyde, C benzene, D salicylic acid. The correct option is Riemann-Tiemann reaction. What are the reactants? The reactants are definitely phenol and they are made to react with chloroform and KOH. So there is an intermediate that is formed, that is substituted benzyl chloride. Option number A, that is the correct option. Here salicylaldehyde is the end product. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरमीडिएट पूछा गया है, तो इंटरमीडिएट आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड ही रहेगा, जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। Now the next question is the famous reaction in which the alkyl halides and sodium alkoxides react to form ether is Kolbe's reaction, Riemann-Tiemann reaction, Williamson synthesis, and none of these. So in here you can see alkyl halides का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड्स के साथ, और ईथर के फॉर्मेशन में
सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस। इसको बहुत अच्छे से आप याद करके एग्जाम में जाइएगा अपने सीबीएसई एग्जामिनेशन में। विलियमसन सिंथेसिस जिसमें हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और आपको क्या मिलता है, उससे ईथर्स मिलते हैं। Next question is dehydration of ethanol in presence of sulfuric acid at 413 Kelvin results in the formation of ethene, B ethoxy ethane, C is ethoxy methane and D is none of the above. Here जो मैं बात कर रही थी आपसे रिएक्शन कंडीशंस की 413 केल्विन, इसका ध्यान देना है। डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल्स का होता है बच्चों, उसमें दो चीजें होती हैं, दो टाइप के टेम्परेचर्स यूज किए जाते हैं। एक में जब हम 413 केल्विन पे करते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है और 443 केल्विन पे करते हैं तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलता है। जब हम 413 केल्विन पे करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, ईथर्स मिलते हैं, है ना। तो इथीन तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इथॉक्सी मीथेन। नाउ वी हैव कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स डैश कंपीट्स ओवर डैश ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस। सो द आंसर इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। जब विलियमसन सिंथेसिस होती है तो उसमें अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बेस्ट रिजल्ट देते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं जिनको आप एल्कोक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कंपीट करती है किससे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अनदर क्वेश्चन इज phenol is converted to dash on heating with zinc dust. So this reaction is can be used in the conversions also, like phenol को अगर हम जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें, टेम्परेचर दे दें, है ना, तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन्स में आपके बहुत ज्यादा ये रिएक्शन यूज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when bromination is carried out in solvents of low polarity such as chloroform and at low temperatures dash are formed. अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपसे ब्रोमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे फिनॉल्स की। तो ब्रोमिनेशन में मैंने बताया था कि अगर आप एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो आपके फिनॉल्स हैं वो हमेशा उसमें क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा, जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन वेकेंट मिलेंगी उन सब पे जाकर ब्रोमीन लग जाएगा, है ना। तो दो ऑर्थो पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। तो ब्रोमीन आपका क्या बना, कहाँ कहाँ लग जाएगा, 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, तो यहाँ पर लेकिन क्या कहा गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो लो पोलैरिटी का है जैसे क्लोरोफॉर्म, और टेम्परेचर को भी लो किया है, तो हमें क्या मिलेगा, मोनोब्रोमोफेनॉल्स। Okay, here we can obtain monobromofenols. That is, a single bromine group is attached to the phenol. Another question is in this category is phenoxide ion generated by treating phenol with sodium phenoxide is dash reactive than phenol towards electrophilic substitution. ओके, तो आपके जो फेनॉल्स हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और अगर हम कंपेयर करें फिनॉल की रिएक्टिविटी विद द फिनॉक्साइड आयन दैट इट प्रोड्यूसेस बाय लूजिंग वन ऑफ द H+ आयन, तो यहाँ पर हम अगर उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो आपको पता होगा कि जो फिनॉक्साइड आयन है ना, फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। एंड व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, तो यहाँ पर रीजन बहुत ही क्लियर है कि भाई फिनॉल क्या कर रहा है, वो भी तो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और फिर वो रेजोनेंस में आकर रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं।
है ना, नेगेटिव चार्ज वहां पर आ जा रहा है, और फिर उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर वहां पर अटैक कर सकता है। उसी तरीके से अगर सीधे नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो और आसानी से रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना। तो इन दैट केस फिनॉक्साइड आयन that is containing negative charge over the oxygen is more reactive than the oxygen in the phenols which has got lone pairs. Okay, तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डेफिनेटली फिनॉल से ज्यादा है, इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। अनदर क्वेश्चन इज the ortho and para isomers of nitrophenol can be separated by। अब यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल की बात की गई है, तो नाइट्रो जो आपका ग्रुप है, अगर हमें मोनो नाइट्रो कंपाउंड्स मिल रहे हैं फिनॉल्स के, है ना, पिक्रिक एसिड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पिक्रिक एसिड में तो 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आपके लग गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोनो नाइट्रोफिनॉल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्थो आइसोमर की और पैरा आइसोमर की, तो उन्हें हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? दैट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये स्टीम वोलेटाइल है। ओके, तो हम स्टीम और क्या कर लेता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म कर लेता है, स्टीम वोलेटाइल है, इसीलिए हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। Another question in this category is when the vapors of primary or a secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin। तो यहाँ पर फिर से आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज क्या है, कौन कौन से अल्कोहल की बात की गई है ना। प्राइमरी अल्कोहल की बात की गई है और सेकेंडरी अल्कोहल की बात की गई है, टर्शरी अल्कोहल की बात नहीं की गई है। और उसका भी रीजन है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि जो टर्शरी अल्कोहल है दे डू नॉट इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना, वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, अल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कॉपर ले रहे हैं, कौन से टेम्परेचर पर, 573 केल्विन पर ले रहे हैं, तो डैश टेक्स प्लेस फॉर्मिंग डैश और डैश। तो यहाँ पर 3 ब्लैंक्स हैं, डिहाइड्रोजनेशन होता है और 2 चीजें कौन कौन सी बनती हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं और कीटोन्स बनते हैं। फिर से अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन्स बनेंगे। फिर से अब अगला क्वेश्चन इसी कैटेगरी में, फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी में ही अगर आप देखें तो है ल्यूकास रिएजेंट पे फिर से क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ल्यूकास टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट while their halides are immiscible and produce dash in the solution. So it is very simple. Whenever alcohols are reacted with a Lucas reagent, that is ZnCl2 and HCl, they form halides. Okay, तो जो हैलाइड्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं और प्रेसिपिटेट नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर उसके बाद टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी मिलेगी पर 5 मिनट्स के बाद मिलेगी, और वहीं अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है देन द टर्बिडिटी विल अपीयर इमीडिएटली। Another question is the reaction of phenol with metals and sodium hydroxide indicates its dash nature। तो अगर आपने पता है कि जो फिनॉल्स हैं वो हमारे एसिडिक नेचर में हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक ऐसी रिएक्शन लिखिए जो प्रूव करती है कि फिनॉल्स का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं? उनका मेटल्स के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप उसकी रिएक्शन लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो H है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जो मेटल होगा या फिर जो सोडियम आपने यूज किया है
उसके साथ ONA बना लेगा ना, सोडियम एल्कोक्साइड्स बना लेंगे। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये फिनॉल का एसिडिक नेचर प्रूव करती है। स्टूडेंट्स, इस बार केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंक्लूड हुए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और दीज आर वेरी न्यू टू यू, सो कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस that are case based questions. Also see the CBSE sample paper, and there you will find out the examples of case study questions. Okay, and these are very important, do not leave them, because this is a new concept that is being introduced from this year only, case study questions. Okay, so the next question here is an it is electron releasing group dash electron density on oxygen tending to dash the polarity of OH bond. तो अगर आप यहाँ पर अल्कोहल या फिनॉल्स की बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप ऑक्सीजन मतलब लगा देते हैं रिंग में फिनॉल की, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इफेक्ट क्या पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगी, तो जो हाइड्रोजन है उसको लूज करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए अगर हम कंपेयर करेंगे एसिडिटी ऑफ phenols with those compounds, those phenols which have some electron releasing group attached to them, तो phenol की एसिडिटी हमेशा उनसे ज्यादा आएगी। Another question is solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form dash with water molecules. Definitely alcohol और phenol water में कब soluble होंगे, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल, बहुत अच्छे से मिसिबल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ईथर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो ईथर्स भी जो आपके हैं, है ना, उनको अगर उनकी सॉल्युबिलिटी और इससे कंपेयर करेंगे, या उनके जो क्या कहते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है उनको उससे कंपेयर करेंगी, तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, पर ईथर्स में ऐसा नहीं होता है। Yes, to get more videos of all the subjects, what you have to do, it is very clear to you. You have to like, share, and subscribe One Mark Solution. Now, next category of question is assertion and reason based. Okay, these questions are also very tricky ones. So here you have 5 type of options. In first, assertion and reason both are correct, and the reason is the correct explanation of assertion. In the second one, you have both assertion and reason as correct, but reason does not explain assertion. In the third, assertion is correct, but the reason is incorrect. And in the fourth one, both assertion and reason are incorrect. Last one is assertion is incorrect, but the reason is correct. The first question in this category is assertion is alcohols and phenols are miscible with water. Reason, they have the ability to form hydrogen bonds with water. Just now we have discussed that alcohols and phenols can form hydrogen bonds with water, so definitely they are miscible. So both the assertion and reason are correct. So we have option number 1 as the correct answer. Assertion and reason both are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Another question in this category is diazonium salts are hydrolyzed to phenol by warming with water. Reason, diazonium salts are prepared by treating aromatic primary amine with nitrous acid. तो ये तो हमने बात डिस्कस की थी कि डायजोनियम सॉल्ट्स को हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स या एनिलीन के साथ बना सकते हैं, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करा के। लेकिन इसका जो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर जो असर्शन है उसको ये रीजन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, that is assertion and reason both are correct, but the reason does not explain assertion. Another question is assertion,
Hydroboration of alkenes to yield alcohols occur by anti-Markovnikov rule. Yes, hydroboration reaction की अगर हम बात करेंगे alkenes की, तो that occurs by anti-Markovnik rule. एकदम सही है ये assertion. Reason कह रहा है कि boron atom gets attached to the carbon carrying more number of hydrogen atom. तो ये रीजन भी एकदम सही है. एंड जब मार्कोनिकॉफ रूल की बात की जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें कम होते हैं हाइड्रोजन एटम्स. पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है यहाँ पे. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बोरॉन एटम उसी कार्बन एटम से जाकर अटैच होगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे. So the correct option is answer A, one, that is assertion and reason both are correct, and the reason is the correct explanation of assertion. Another one is assertion. The bond length in phenol is slightly less than that in methanol. The reason क्या है? It is due to partial double bond character and sp2 hybrid state of carbon to which oxygen is attached. तो यहाँ पर फिनॉल को अगर आप देखें तो और उसे जो मिथेनॉल है वो एक अल्कोहल है ना. तो इन दोनों की अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो बॉन्ड लेंथ जो फिनॉल की है वो अल्कोहल से डेफिनेटली कम होगी. और उसका रीजन क्या है? सही रीजन दिया हुआ है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कार्बन का जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज one, that is assertion and reason both are correct, and the reason is the correct explanation of assertion. अब एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे. और बच्चों अगर आपको पूरा मार्क्स स्कोर करने हैं आज 70 आउट ऑफ 70 तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन है ना, एक एक लाइन से आपको जो है उसको पढ़ना होगा अच्छे से. कहीं से भी कोई भी आपका आ सकता है. तो जो शॉर्ट टर्म स्टडी आप लोग करते हैं वो बिल्कुल मत करिए. पूरा आप एनसीईआरटी को बहुत ही थॉरोली पढ़िए. ये आपका केमिस्ट्री की अगर बात केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जाए तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि जो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे अब जो अगला कैटेगरी है क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर जिनमें आपको मिलता है ना. So the test that differentiates the reactivity of three classes of alcohols. तो ये आपका बहुत ही क्लियर है, ल्यूकास टेस्ट. Another question is the yellow colored compound obtained by the nitration of phenol with concentrated nitric acid. तो फिनॉल का जब हम नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो हमें पिक्रिक एसिड मिला है. अभी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस पे डिटेल में डिस्कस हुआ था. अगला क्वेश्चन है द कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बाय क्रोमिक एसिड. तो यहाँ पर एक जब हम क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन मिलता है ना. क्रोमिक एसिड क्या है आपका Na2Cr2O7 और H2SO4 है ना. इसकी प्रेजेंस में ये आप कहते हैं क्रोमिक एसिड बनता है ना. तो ये कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जो हमें मिलता है वो है बेंजोक्विनोन. ओके, मतलब बीच में आपका बेंजीन रिंग है और दोनों साइड आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, तो उसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं. Another question in this category is the reaction in which oxidation of trialkyl boranes results in the formation of alcohol. उस रिएक्शन की आप अगर बात करें कि जिसमें ट्राइअल्काइल बोरेन्स का ऑक्सीडेशन किया जाए और उससे क्या बने, अल्कोहल्स बने. तो बच्चों अगर हम किसी भी एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और सिर्फ हाइड्रोबोरेशन. अगर आप सिर्फ डाइबोरेन से रिएक्ट करा रहे हो एल्कीन्स को तो आपको सिर्फ ट्राइअल्काइल बोरेन्स तक ही मिलेगा है ना. अगर आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं करा रहे हो बाय यूजिंग H2O2 है ना तो आपको अल्कोहल्स नहीं मिलेंगे. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सो द रीजन द करेक्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. नाउ another question is the aromatic hydrocarbons which oxidizes in air to produce phenol. तो वो aromatic hydrocarbon जिससे हम फिनॉल
पा सकते हैं, उसे ऑक्सीडाइज कराकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर O2 क्यूमीन है वो, है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपका जो है दैट इज क्यूमीन। ओके, तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अनदर थिंग इज, now we come to the next category, that is true and false. The first question in this particular category is orthonitrophenol is extreme volatile. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया है। दो तरीके के आपके आइसोमर्स होते हैं फिनॉल्स के। ऑर्थो जो आइसोमर होता है नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, और दूसरा है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर उन दोनों को सेपरेट करना है तो हमें स्टीम डिस्टिलेशन यूज करना है ना। स्टीम डिस्टिलेशन वी हैव टू यूज। Why? Because one of the isomer is steam volatile, और यहाँ पर जो steam volatile आपका आइसोमर है वो कौन सा आइसोमर है, वो है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। Another question is, better results are obtained in Williamson synthesis if the alkyl halide is primary. तो विलियमसन सिंथेसिस की अगर बात की जाए, so this is a very famous reaction for the production of ethers, और इसमें हम एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन कराते हैं, जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है उसके साथ आपका रिएक्शन कराते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, हमें ईथर्स मिलते हैं, है ना। तो इसमें जो अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं अगर अभी आपने देखा होगा सेकेंडरी और टर्शरी अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिए हैं तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, एंड एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन दैट केस द करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। Another question in this category is, alkoxide ion is more stable than phenoxide ion. तो अगर हम बात करेंगे एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन की, तो एल्कोक्साइड आयन आपके ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन से। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। फिनॉक्साइड आयन आपका रेजोनेंस भी करता है। उसके जो एल्कोक्साइड आयन के देखोगे तो उसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर जो आप फिनॉक्साइड आयन की बात करेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Another statement is, acidic dehydration of alcohols is also associated with substitution to give an ether. तो अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अल्कोहल्स का, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल्स का तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वहां पर अल्कीन बन जाए, है ना, और या वहां पर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ईथर बन जाए। लेकिन हमें रिएक्शन कंडीशंस याद रखनी है। जब आपका एल्कीन बनता है तो वहां पर अलग रिएक्शन कंडीशन है, और जब आपका ईथर बनता है तो वहां पर टेम्परेचर दूसरा है, 413 केल्विन है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The boiling point of ethoxy ethane is more than butane 1-ol, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इथॉक्सी इथेन जो कि एक ईथर है और ब्यूटेन 1-ol है ना, वो क्या है, अल्कोहल है। इनका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्यूटेन 1-ol है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, और इस वजह से जो आपका ये स्टेटमेंट है दैट विल बी फॉल्स। Another statement is, salicylic acid is the major product formed in the coal base reaction. No, salicylic acid यहाँ पर yes, salicylic acid आपका क्या है, कोल बेस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है ना। कोल बेस रिएक्शन में होता क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का, है ना। तो वहां पर हमें एक जो प्रोडक्ट मिलता है, एक एसिड मिलता है, वो कौन सा है, हमारा सैलिसिलिक एसिड है। और अगर हम रीमर-टीमन रिएक्शन करें तो इसी से मिलता जुलता एल्डिहाइड आपको मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। Another question is, acetylation of salicylic acid produces aspirin. Yes.
अगर हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन रिएक्शन कराते हैं, मतलब उसका रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और एसिटिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमें एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, जिसका दूसरा नाम एस्पिरिन भी है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now we come to an end of this presentation, and to get more videos of all subjects, you have to like, share and subscribe One Marks Solution. So with this, I come to an end of this particular presentation. Now, Dr. Asad Ahmed, if you are able to listen to me, I end the presentation from my side, sir. Thank you. थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी तरह से ये जो चैप्टर था हमारा अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स को, चैप्टर 11 और क्लास 12 केमिस्ट्री, बहुत अच्छी तरह से आपने डिस्कस किया है। और जितनी तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चंस आपने यहाँ पर बच्चों के साथ डिस्कस किए हैं। बच्चे 2 मिनट वेट करेंगे, मैं जस्ट फीडबैक लिंक जो है आज के सेशन का मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप उस फीडबैक लिंक को भरें। उसमें एक क्विज़ है और क्विज़ में कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में से अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं आउट ऑफ 10, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट इन योर मेल आईडी। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आगे भी हम इस तरह के चैप्टर्स को ऑन ट्यूसडे हम लोग चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद हम लोग संभवतः जो है ऑन वेंसडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स चैप्टर 10, और उसके आगे इस तरह से लगातार हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आप इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने जूनियर्स को भी बताएं, अपने क्लासमेट्स को भी बताएं, बैचमेट्स को भी बताएं कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के, सभी चैप्टर्स के, सभी क्लासेस के 1 मार्क के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको विद डिस्कशन मिलेंगे, विद रीजनिंग मिलेंगे कि कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज के इस सेशन के लिए हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी हुई थी मैडम श्रद्धा शुक्ला, जो कि केंद्रीय विद्यालय आरआरसी फतेहगढ़ पीजीटी केमिस्ट्री है। मैं मैडम का सभी व्यूवर्स की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ 1 मार्क सोल्यूशन मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और बच्चों के लिए इस तरह के एक सेशन उन्होंने जो है वो डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी मैम इसी तरह समय निकालती रहेंगी और हमारे साथ जुड़ती रहेंगी, और हम सब लोग मिल करके बच्चों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू श्रद्धा मैम, थैंक यू सो मच, एंड Thank you, थैंक यू sir. ऑल द Thank you, व्यूअर्स। sir. ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड feedback form in live chat box. You can fill out the form. Stay tuned with us, share the video with your friends, and visit the playlist for the previous sessions also. Thank you so much. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. I take